السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی CBI نے راجیو گاندھی نیشنل کریڈٹ اسکیم میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، جس میں انڈین کونسل فار چائلڈ ویلفیئر لاگو کرنے والی ایجنسیوں میں سے ایک تھی۔ اب ICCW کے خلاف نیشنل کریڈٹ اسکیم کے تحت فنڈز کے مبینہ غبن کے الزام میں FIR درج کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک FIR پہلے دہلی پولیس کے پارلیمنٹ اسٹریٹ تھانے میں دفعہ 406 اور 420 کے تحت درج کی گئی۔ اب اس معاملے کی جانچ CBI کرے گی۔ دہلی پولیس نے خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت کے ایک اہلکار کی شکایت موصول ہونے کے بعد FIR درج کی تھی۔ ریاست اتر پردیش کے شہری بلدیاتی انتخابات میں دیگر پسماندہ طبقات کے لیے ریزرویشن کے معاملے کو دیکھنے کے لیے قائم کیے گئے 5 رکنی وقف OBC کمیشن نے اپنی 350 صفحات پر مشتمل رپورٹ وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کو سونپ دی ہے۔ رپورٹ سپریم کورٹ کی 31 مارچ کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن سے تقریباً 3 ہفتے قبل پیش کی گئی ہے۔ ایک سرکاری ترجمان کے مطابق اس رپورٹ کی بنیاد پر ریاست کے تمام 75 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے OBC ریزرویشن نئے سرے سے کیے جائیں گے، جس سے بہت تاخیر سے ہونے والے شہری انتخابات کی راہ ہموار ہوگی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ریاست میں افیم کی کاشت کی اجازت کے لیے مرکز کو خط لکھا ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ ہم اسے زرعی فارموں میں کاشت کریں گے۔ ہمارے پاس ایسے کئی فارمز موجود ہیں۔ اگر ہم اپنی ریاست میں افیم اگاتے ہیں تو ہم اسے 1000 روپے کی بجائے 100 روپے فی کلو میں خرید سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا جائے کیونکہ تمام پوسٹ کے بیچ منشیات نہیں ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے عام آدمی پارٹی لیڈر اور سابق ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا کو دہلی آبکاری پالیسی میں مبینہ بے قاعدگیوں کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ 51 سالہ سسودیا کو تہاڑ جیل میں دوسرے دور کی پوچھ تاچھ کے بعد انسداد منی لانڈرنگ قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ایجنسی کا الزام ہے کہ سسودیا اپنے جوابات میں ٹال مٹول کر رہے ہیں اور تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ سسودیا سے پوچھ تاچھ کا پہلا راؤنڈ 7 مارچ کو ہوا تھا۔ منیش سسودیا کو ان کی درخواست ضمانت پر سماعت سے ایک دن قبل گرفتار کیا گیا۔ ان سے 2 دن منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی گئی۔ اس طرح ED کی گرفتاری سے سسودیا کے معاملات پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ انہیں آج جمعے کو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ریاست کرناٹک کے ملیشورم پری یونیورسٹی کالج کی ایک طالبہ جو برقع پہن کر امتحان لکھنے کی اجازت دینے پر اصرار کر رہی تھی، پرنسپل نے کاؤنسلنگ کی، جس کے بعد طالبہ حجاب اتار کر امتحان لکھنے کے لیے راضی ہو گئی اور امتحان میں شریک ہوئی۔ طالبہ آخری لمحات تک اصرار کرتی رہی کہ اسے حجاب پہن کر امتحان دینے کی اجازت دی جائے، اگرچہ حکام نے اس کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ طالبہ اٹل رہی، تاہم پرنسپل جو امتحان کی ڈیوٹی پر تھے انہوں نے طالبہ سے بات کی اور اسے قواعد کے بارے میں بتایا۔ وزارت تعلیم کے ذرائع نے بتایا کہ اس نے اسے یہ بھی بتایا کہ امتحانات لکھنا کتنا ضروری ہے، جس کے بعد طالبہ نے حجاب ہٹانے پر رضامندی ظاہر کی۔ وزیر تعلیم PC ناگیش کئی بار کہہ چکے ہیں کہ حجاب یا کوئی ایسا لباس جو مذہب کی علامت ہو، ان کو پہن کر امتحانات دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کرناٹک میں 12ویں کے امتحانات کا جمعرات سے آغاز ہو گیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے برطانیہ میں راہل گاندھی کے لیکچرز کی تائید کرتے ہوئے BJP کو نشانہ تنقید بنایا اور کہا کہ پارٹی بوکھلا گئی ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ گورو گوگوئی نے کہا ہے کہ پوری BJP مشنری بشمول سینئر وزراء، میڈیا چینلز اور غیر سرکاری ترجمانوں کو راہل گاندھی کے لیکچر سیریز سے بوکھلاہٹ ہو رہی ہے۔ برطانیہ میں رہنے والے تمام ہندوستانی جنہوں نے ان پروگراموں میں شرکت کی ہے، ان کا رد عمل انتہائی مثبت ہے۔ BJP نے راہل گاندھی پر تنقیدوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جبکہ کانگریس نے ہر مسئلے پر ان کے بیان کی مدافعت کی ہے۔ ششی تھرور نے بھی خارجہ پالیسی پر راہل گاندھی کے بیان کا دفاع کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ راہل گاندھی نے آخر کیا غلط کہا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے اور نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی ڈبل انجن حکومت نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا، جس میں کئی وعدے اور اعلانات کرتے ہوئے خواتین اور کسانوں کو ترجیح دینے کی بات کی گئی۔ نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس، جو مہاراشٹر کے وزیر مالیت بھی ہیں، انہوں نے اسمبلی میں 5,47,450 کروڑ روپے کے خسارے کا بجٹ پیش کیا۔ بجٹ میں فڈنویس نے کوئی نیا ٹیکس عائد کرنے یا کسی ٹیکس کی شرح میں اضافے کا کوئی اعلان نہیں کیا، بلکہ کسانوں، خواتین اور طلبہ کے لیے کئی لبھانے والے اعلانات کیے۔ اس بجٹ کی وجہ سے ہونے والے خسارے کی بھرپائی کرنے کے لیے وزیر مالیت نے مرکز سے قرض لینے کی بات کہی۔ اسی وجہ سے اپوزیشن لیڈر اجیت پوار نے شنڈے حکومت کے بجٹ کو حقیقت سے پرے اعلانات اور سنہرے خواب دکھانے والا انتخابی بجٹ قرار دیا۔ مہاراشٹر اسمبلی میں لو جہاد سے متعلق ایسے اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں جس نے سبھی کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔
रियासती वजीर बराए ख़वातीन व इत्फाल मंगल प्रभात लोधा ने बजट इजलास के दौरान ऐवान को जानकारी देते हुए बताया कि रियासत में लव जिहाद के 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो तशवीशनाक बात है, लेकिन उन्होंने इस ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की। लोधा ने सिर्फ इतना कहा कि रियासत के नाराज़ अवाम इसी वजह से लव जिहाद के खिलाफ कई अजला में 50-50 हज़ार की भीड़ में एक साथ आकर एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। ओडिशा के जिला जगत सिंहपुर में पारादीप साहिल से दूर एक माहीगीर कश्ती से एक कबूतर को पकड़ा गया, जिसके पांव पर जासूसी के आलात बंधे हुए थे, जो बज़ाहिर एक कैमरा और एक माइक्रोचिप मालूम होते हैं। बाज माहीगीरों ने इस कबूतर को अपने ट्रालर के ऊंचे डंडे पर उतरते हुए देखा। कबूतर को पकड़ लिया गया और बहरी पुलिस के हवाले कर दिया गया। जगत सिंहपुर के सुपरिटेंडेंट पुलिस राहुल PR ने PTI को बताया कि हमारे माहिरीन हैवानियत परिंदे का मुआयना करेंगे। हम रियासती फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की मदद से इसके पैरों से मुंसलिक आलात का मुआयना कर रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि ये आलात एक कैमरा और एक माइक्रोचिप है। SP ने कहा कि माहिरीन की मदद से परिंदे के पैरों पर नामालूम जबान में लिखी हुई तहरीर का पता चलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली सौरभ भारद्वाज और आतिशी को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने जुमेरात के रोज उजरा की हैसियत से हलफ दिलाया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। दिल्ली असेंबली में कायद अपोजिशन रामवीर सिंह भदौरी ने भी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। आतिशी महकमा तालीम PWC D बरकी और सयाहत की वजारत संभालेंगी, जबकि सौरभ भारद्वाज सेहत, शहरी तरक्की, पानी और सनतों को देखेंगे। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और वजीर सत्येंद्र जैन के इस्तीफों के बाद ये दोनों काबीना ओहदे मखलूआ हो गए थे। रियासत उत्तर प्रदेश में ओमेश पाल कत्ल के मुलजिम उस्मान की मुबैना इनकाउंटर में हलाकत का तनाज़ा दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। उस्मान की बीवी सहानी का दावा है कि इसके शौहर का नाम उस्मान नहीं बल्कि विजय चौधरी था। इसने मीडिया को बताया कि सारा गांव इसे विजय के नाम से जानता था। इसकी हलाकत के बाद हमें पता चला कि वो 5 मार्च की रात से घर में था और 6 मार्च की सुबह 7 बजे घर से रवाना हुआ था। पुलिस का दावा है कि इसे 6 मार्च के अवलिन सातों में हलाक कर दिया गया। इसने मजीद कहा कि मेरा शौहर 24 फरवरी को घर में था जब ओमेश पाल का कत्ल हुआ था। 27 फरवरी को वो अपने बड़े भाई राजेश के खिलाफ दर्ज किए गए एक केस के सिलसिले में सतना गया था और 2 मार्च को घर वापस आया था। पुलिस इनकाउंटर में इसकी मौत के बाद जब ओहदेदारों ने तहकीकात के लिए मुझे बुलाया तब मुझे इसके बारे में पता चला। सहानी ने दावा किया कि इसका शौहर ड्राइवर की हैसियत से काम करता था और इसे अतीक अहमद से या इसके ताल्लुकात के बारे में कोई इल्म नहीं है। इसने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही है। पुलिस ने गलत किया है। कानून किसी को हलाक करने के लिए नहीं बनाया जाता बल्कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया जाता है। इसने कहा कि पुलिस ने इसके शौहर को महज इसलिए हलाक किया है क्योंकि वो लोग मुजरिमों को ढूंढने में नाकाम रहे और अपनी कहानी को काबिल एतबार बनाने इसे एक मुस्लिम नाम दे दिया गया। इसने कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं, हमारे घर को देखें, इसमें तमाम हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर मौजूद है और हम सारे हिंदू त्यौहार मनाते हैं। इस गांव में रहने वाला हर शख्स जानता है कि हम हिंदू हैं। अपनी नवियत के एक मुनफरिद जायजे में पता चला है कि हिंदुस्तान में 60 साल या इससे ज़ायद उम्र के 10 मिलियन से ज़ायद अफराद में भूलने की बीमारी डेमेंटिया हो सकती है। डेमेंटिया के नतीजे में दिमागी सलाहियतें मसलन याददाश्त, सोच, माकूलियत और फैसला करने की ताकत मुतासिर हो सकती है और इससे रोज़मर्रा के अफ़आल अंजाम देने की फ़र्द की सलाहियत मफलूज हो जाती है। एक तिब्बी जरीदे में शाया रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा अफराद का तनासुब 19% होगा। इस ज़ईफ़ आबादी में डेमेंटिया बीमारी के मामलात में भी इजाफा होगा। मलेशिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुहीउद्दीन यासीन को करप्शन के इल्ज़ामात का सामना है। मलेशिया के इंसदाद बदउनवानी कमीशन के सरबराह ने बताया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर आज जुमे को बदउनवानी से मुतालिक फ़र्ज़ जुर्म आयद किया गया। मुहीउद्दीन जो 2020 और 2021 के दरमियान 17 माह तक वज़ीर-ए-आज़म रहे। मुहीउद्दीन और इनकी जमात को गुज़िश्ता नवंबर में हुए इंतख़ाबात में सख्त मुकाबले के बाद वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से हारने के बाद से बदउनवानी की तहक़ीक़ात का सामना है। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ों को बाकायदा बनाने की दरख्वास्तों की यकसुई के लिए मज़ीद 1 माह की मोहलत दी है। अराजी रखने वाले गरीबों को मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की इमदाद का फैसला किया गया। रियासती काबीना का इजलास चीफ मिनिस्टर KCR की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में कई अहम फैसले किए गए, जिनमें दलित बंधु स्कीम के दूसरे मरहले में 1,30,000 ख़ानदानों को फ़ीकस 10 लाख रुपए इमदाद, अराजी रखने वाले गरीबों को मकानात की तामीर के लिए इमदाद की नई स्कीम गृह लक्ष्मी का ऐलान किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बताया कि सरकारी अराजियात पर कब्ज़ों को बाकायदा बनाने की तारीख में तौसीक़ के लिए नुमाइंदगी मौसूल हो रही थी।
हुकूमत ने जियो 58 और 59 के तहत बाकी इस्तीफादा कुनिंदगान की दरख्वास्तों के लिए मोहलत में 1 माह की तौसीह कर दी है। गरीबों को जियो 58 के तहत 1 रुपये के बगैर ही अराजी पर हक फराहम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ भूपेश भागेल ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तियार आने पर छत्तीसगढ़ मॉडल पर अमल करके समाज के हर तबके की भलाई को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ आज करीमनगर जिले में कांग्रेस के बड़े जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया, जिसमें हजारों कांग्रेस कारकुन और हामी शरीक थे। सदर प्रदेश कांग्रेस हेमंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के 23वें दिन करीमनगर टाउन का अहाता किया गया। शहर के अम्बेडकर स्टेडियम में जलसे आम मुनक्किद हुआ। 2004 में सोनिया गांधी ने इसी ग्राउंड में अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया था, जिसकी मुनासिबत से कांग्रेस ने जलसे आम मुनक्किद किया। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। 15 मार्च से इम्तिहानात का आगाज होगा, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेंगे। जुमला 9,51,022 तलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे, जिनमें 9,06,000 रेगुलर और 45,000 खानगी है। इनके लिए 1473 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। सुबह 9 था दोपहर 12 बजे इम्तिहान मुनक्किद होंगे। अभी तक कॉलेज लॉग इन ID में तलबा को हॉल टिकट जारी किए गए हैं। CC कैमरों की निगरानी में इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तलबा में पर्चे सवालात की तकसीम और जवाबी पर्चे की हवालगी तक तमाम अमल को CC कैमरों में महफूज किया जाएगा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा कि BRS की रुकन कानून साज कौंसल कविता को दी गई नोटिस ED की नहीं बल्कि मोदी की नोटिस है। हुकूमत के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाले BJP के तर्जुमान मीडिया इदारों पर मुनासिब वक्त पर इम्तना आयद करने का इंतबा दिया। आज तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वज़रा E दियाकर राव, श्रीनिवास गौड़, V प्रशांत रेड्डी, P अजय कुमार के अलावा दूसरे मौजूद थे। KTR ने कहा कि 8 साल से मुल्क में जुमलेबाजी की हुकूमत चल रही है। तेलंगाना के वज़रा और BRS के अरकान असम्बली के खिलाफ मरकजी तहक़ीक़ाती एजेंसियों ने दावे किए हैं। इसके बाद कविता को ED की जानिब से नोटिस जारी की गई। पार्लियामेंट के मौजूदा सेशन में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल मुतारिफ करने के मुतालबे पर भूख हड़ताल से पहले BRS लीडर कविता ने UPA के दौर में इस बिल को पेश करने पर सोनिया गांधी की सताइश की। कविता ने 18 सियासी जमातों बशमूल कांग्रेस को एक रोज़ा भूख हड़ताल के लिए मदऊ किया ताकि इस मुतालबे पर दबाव डाला जा सके। उन्होंने कहा कि तकरीबन 6,000 अफराद इस भूख हड़ताल में शिरकत करेंगे। इनकी तंजीम भारत जागृति हम ख्याल जमातों और तंजीमों तक रसाई हासिल करेगी। उन्होंने कहा, मरकज़ में इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत के बावजूद ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की तायीद पर मैं सोनिया गांधी को सलाम करती हूँ। कविता ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से बातचीत करते हुए इस एहतजाज में अपने नुमाइंदे को भेजने की ख्वाहिश की है। BRS लीडर जो दहली शराब स्कैम में ED के सामने हाजिर होने से पहले ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल का मसला उठा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तेलंगाना ने अचानक अमवात के वाक़ात में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए आवाम पर जोर दिया कि वो एहतियात बरतें। अपने बयान में IMA ने कहा कि अचानक मौत की 2 अक़साम हैं। पहली किस्म दिल का दौरा है, जो उमूमन ज़्यादा उम्र के अफराद के ग्रुप या रिवायती दिल की शरियान को होने वाले ख़तरात के अवामिल से होता है। दूसरी किस्म की अमवात दिल के दौरे की वजूहात से हटकर दूसरी वजूहात के सबब होती है। ऐसे मामलात में उमूमन मरीज़ को क़ब्ल अज़ीं दिल का दौरा नहीं होता है। पहले ग्रुप के अफराद में दिल के दौरे का पता ECG, AQ और TMT के ज़रिए लगाया जा सकता है, जबकि दूसरे ग्रुप के लिए ECG मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग और जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। डॉक्टर BN राव और रियासती सदर IMA ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो वज़ीर सेहत हरीश राव की जानिब से शुरू करदा CPR ट्रेनिंग सेशन में तेज़ी पैदा करें ताकि 2024 के अवाखिर तक बालिग आबादी के 50% अफराद इसमें माहिर हो सकें। IMA ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो बिलखुसूस नौजवानों की अचानक अमवात की वजूहात मालूम करने, तहक़ीक़ के लिए फ़ंड्स अलाट करें और अचानक मौत की तहक़ीक़ात के लिए कमेटियाँ तश्कील दी जाए ताकि अचानक अमवात से होने वाले ख़तरात को दूर किया जा सके।